अभी तक की तो सबसे टफेस्ट क्लास है वो 11th है। स्ट्रेसफुल है, टफेस्ट भी नहीं कहूँगा, स्ट्रेसफुल है बहुत ज्यादा जो ये। पढ़ रहा है जो फेल हो रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेस है, मजे आ रहे हैं उनको तो। सर जाएंगे दे पे माँ दे बाप। एग्जाम, दे पे दे एग्जाम लेते एक तो। हाँ। जस्ट अभी तो, अभी अगले हफ्ते टर्म है। अगले नहीं मतलब अगले सब अगले हफ्ते यस। फिर ठीक है प्रैक्टिकल। जी। हाँ राजी प्रैक्टिकल। टेल मी इफ यू कैन। अरे वाह, आ गया प्राइवेट कर रखी आपने, क्या बात है, अपने प्राइवेट पब्लिक तो कर दो। मतलब। अपने लाइव स्ट्रीमिंग प्राइवेट कर रखी। वो कैसे होगी अब। कर लो वहां पे जाके, कर लो आराम से यूट्यूब पे। नहीं नहीं वो अभी नहीं। वेट यार क्या बोल रहे हो तुम। नहीं ठीक है। चलो। हमारा चैप्टर है। नहीं 12th नहीं पढ़ रहे हम। सर फेसबुक में आपके कितने फॉलोअर्स हैं? पता नहीं यार कोई मेरा फॉलोअर नहीं है कोई। इतना सोचता नहीं मैं। यूट्यूब पे देर आर एटलीस्ट मिलियन चैनल्स। बट आपके 673 हो गए हैं, मतलब बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स। हाँ थोड़ा सा। ये काम मुझे 10 साल पहले सीख लेना चाहिए था कि कैसे होता है ये। एनीवे। देरम दुरुस्तम। ओके। फराडे। सो आई हैव। ऑलराइट कैन यू सी नाउ। हाँ जी। Okay, so I think in terms of principle, that is not a problem with you. I think you know the नो। principle. यस सर, डिराइव भी कर दूंगा लॉ में ठीक है. So थ्योरेटिकली। it's about measurement of a given body, weight of the given body, using the parallelogram law of vector addition. Aim is to find the weight of a given body. ओके। That is why I was asking you, aim क्या है? We don't need to prove law of parallelogram, but we need to use parallelogram to find the weight of a given body. Okay, so the given body with hook, so ये रही body, block. Okay, and the apparatus is called as Gravesand apparatus. This whole apparatus, ये दो पुली वाला apparatus है और मिट्टी। हाँ. So I think ये जो बन रहा है इसके अंदर डायग्राम वैसे भी दिख ही रहा है कि there are two. So this is the mirror strip which is being used on the right hand side, but the experimental apparatus तो बड़ा visible है और tension in the string है. पुली जी। है, ये Q and P known होंगे या। as the two. ये रहे, ये तो पता ही है ये रहे. और so thread carrying hangers for addition of slotted weight is made to pass over the pulleys. Two forces P and सर आपकी आवाज नहीं आ रही। the ठीक। tensions we are generating in them is same as the weight of these two. ठीक। यही टेंशन जनरेट होके जा रही है ना ऊपर. हाँ जी हाँ जी। ऐसे जा रही है और इस पॉइंट पे आके basically you can also apply Lami's at this point, right? It's a three forces in equilibrium, and we can find the third force also. Angle नाप सकते हैं हम. Can find the angle, this angle. But anyway, more importantly, we know we are producing two forces at an angle. So you can see this angle, या। and these two are the threads, okay, which are where the tension is moving away. And इन दोनों का जो resultant है, if you apply it in such a manner कि this doesn't get cancelled, then you will मतलब मान लो ये resultant आ रहा है. If this is the resultant, then a part of this will cancel the weight and the balance of this will not. तो ये जो C dash है, OC dash, that is the one which is cancelling the weight downwards, right? तो पहली बात तो रीडिंग कहाँ कहाँ पे लेनी है, that is very important. और क्या क्या वेट डालने हैं स्लॉट्स के अंदर जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट में ये कैंसलेशन इफेक्ट आ जाए.
Okay, let's see how do we bring the cancellation effect. Mouse. ऐसे आप कहीं ऑनलाइन सिमुलेशन जनरेट कर सकते हो क्या? किसका? इसका सिमुलेशन। कोई मिल जाएगा कोई ना कोई तो। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर से, राइट? यार Yep. Java applet types. Okay. Principle, I think I didn't need to tell you the principle. इन And we know the essentially what we're doing, we are applying two forces at okay and cancelling that with the third. Okay. Okay. So what are the procedure? First, set up the apparatus in the vertical position. क्या? And apparatus जो है ग्रेवस्टैंड apparatus को पहले सेट कर लो. First step. Okay. And check the pulleys are moving smoothly. मतलब pulleys are frictionless and there is no friction on the pulleys. The two pulleys you see on the left and right are frictionless. Okay. सर हमारे जो Check कर पुलिस लो. जो हमें मिलेंगे ना वो बड़े रस्टी से है। हाँ तो मतलब then you have experimental error getting introduced. But ठीक है, we will say that they are negligible or equal on both the sides and get cancelled. Or we will take multiple readings to neutralize the effect of that. Okay. Then take a sufficiently long piece of string and the two hangers at its ends. Tie another shorter string in the middle of the first string to make a knot at O dash. Oh, okay. Okay, ये सब आपको खुद करना है. ये यही वो string है, जो आ रहा है ये शायद असिस्टेंट करके दे देगा हमें। कर देगा. ओके ठीक है, नहीं भी देता तो यू कैन टाई द फर्स्ट string and the shorter string in the middle and then pick up the unknown weight which is a block जो नीचे लटका हुआ है ये with a hook. Use this and यहाँ पे O dash पे से टांग देना. Okay. ठीक है। And then what you do, you keep on adding weights on the hangers जिससे कि जो junction of the threads is in equilibrium in the lower half of the paper. Okay. Make sure that neither the weights nor the threads touch the board or the table. माने normal reaction कहीं से भी नहीं आना चाहिए extra. अगर किसी भी surface पे कोई touch करेगा, चाहे ये side के weights हो, चाहे front का unknown weight हो, no normal reaction. Okay, that is very important. Okay. Bring the knot of 3 threads to position of no friction. ठीक है. Okay. For this, first bring the knot to a point rather wide of its position of no friction. On leaving there, it moves through towards the position of no friction because it is not in equilibrium. While it is so moves, tap the board gently. The point where the knot thus comes to rest is taken as a point of no friction. Mark this point. Repeat the procedure several times. Each time let the knot approach the position, no friction, and different direction, and mark the point where it comes to rest. Find by judgment the center of those points which are close together. Mark the center as O. Okay. सबसे Okay, पहले you have to find the center. Where is the center O? ठीक है, जहाँ पर तीनों चीजें रेस्ट पे आती है। हाँ. बट वो बोल रहा है कि बार बार उसे हिला के छोड़ो. ठीक। For this, bring the knot to a point rather wide of the position. यहाँ पे ले आओ और फिर छोड़ दो. फिर थोड़ी वो रुक जाएगा जहाँ पे जाके अलग अलग उन पॉइंट्स को मार्क कर लो बोर्ड के ऊपर. इस ग्रेव स्टैंड बोर्ड के ऊपर कई पॉइंट्स बना लो, डॉट्स. और उन डॉट्स का जो सेंटर है रफली, ट्रीट दिस एज द सेंटर ऑफ द एज अ पोजिशन ऑफ ओ. इससे क्या हो रहा है कि ये जो for any reason it is showing a wrong reading if it got struck here because of the friction in the pulleys and all that will get cancelled multiple times. हो सकता है 4-5 पॉइंट अलग अलग जगह पे ओ आके रुके, उनका सेंटर लेना है. ओके. To mark the direction of the force along the string, place a mirror strip below the
adjust the position of the eye such that there is no parallax between the string and its image. Mark the 2 points A1 and A2 at the edges of the mirror where the image of the string leaves the mirror. Mark the 2 points at the edges of the mirror. Okay. So you have marked 2 points here, A1 and A2, to find the direction. एक बार एक आंख बंद करके मार्क करना, फिर दूसरी आंख बंद करके मार्क करना. That is parallax. Okay. If you see an object using left right eye and then see the same object using the left eye, you will see the position is different. अगर एक डॉट को देखोगे ना तो पोजीशन में शिफ्ट नजर आता है लेफ्ट आई और राइट आई से देखने पे. द पोजीशन चेंजेस. द सेम पॉइंट विच अपीयर्स लाइक यहाँ पे है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड द पोजीशन विल चेंज. ठीक. तो ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लेना टू इंश्योर दैट दिस इज इन अ स्ट्रेट लाइन. A1 A2. और मिरर का क्या करना है? मिरर यूज होगा. जो मिरर से मिरर है शॉर्ट करना है मिरर यूज करके. अब ये पैरेलैक्स एरर रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है. ये देखो पैरेलैक्स. Okay. To mark the direction of the force, place a mirror strip below the string. Adjust the position of the eye such that no parallax between the string and its image. तो तुम जब स्ट्रिंग की इमेज को देखोगे, थ्रेड की इमेज को मिरर के अंदर, लेफ्ट आई से और राइट आई से, राइट? तो तुम्हें वहां पे स्ट्रिंग को देखना है जहां पे, जो वहां से, क्योंकि रीडिंग लेनी है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए. तो यू हैव टू टेक इट फ्रॉम अ प्लेस फ्रॉम वेयर द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग in the mirror does not change when you see it from left and right eye. That means there is no parallax error. ठीक. Okay. Between what? Between the string and its image. नीचे image, थ्रेड की इमेज थ्रेड के ऊपर ही नजर आनी चाहिए. अगर आप देखोगे एक आंख से तो थोड़ी लेफ्टवर्ड नजर आएगी, और फिर ऊपर से देखोगे तो कभी राइटवर्ड नजर आएगी. तो आपको आंख तब तक हिलाते रहना है जब तक आप, जब ये बंद करो, एक आंख बंद करके देखो, दूसरी आंख बंद करके देखो, और आपको डिफरेंस ना नजर आए. आपको जो ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रिंग की इमेज, उसके नीचे ही नजर आए. नहीं तो क्या होगा जनरली, तो आंख की एडजस्टमेंट करनी है आपको लगातार. यू हैव टू कीप द मिरर, सी इट एट अ सर्टेन पोजीशन, क्लोज योर राइट आई, देन लेफ्ट आई, एंड सी वेदर देयर इज अ पैरेलैक्स एरर कमिंग. मतलब जो ऊपर स्ट्रिंग है और उसकी इमेज है, उन दोनों में अलाइनमेंट का फर्क आ रहा है. तो वो आंखों को तब तक एडजस्ट करना है आपको, थोड़ा गर्दन हिला के, जब तक स्ट्रिंग और उसकी इमेज जो है एक लाइन में नहीं आ जाती. एंड व्हेन यू मूव लेफ्ट एंड राइट, देयर इज नो एरर विच यू सी. दिस एरर इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द आई. लेफ्ट और राइट आई एक ही पोजीशन को अलग अलग जगह देखते हैं, लेकिन एक पोजीशन पे इट गेट्स कैंसल्ड. ठीक. Similarly, mark the direction of the point B. Remove the hangers and note the weight of each hanger and slotted weights on them. Place the board flat on the table with paper on it. Join the 3 pair of points marked on the paper. Then extend these lines to meet at O. अब weights का काम खत्म. ग्रेवस्टैंड स्टैंड को लिटा दो, उसके ऊपर वो जो पॉइंट्स मार्क करें अपने स्ट्रिप से, क्योंकि स्ट्रिप ने ही हेल्प करी आपकी वो A1 A2 को मार्क करने में, इस साइड भी और इस साइड भी. A1 A2 को ज्वाइन कर लो, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड A1 A2 को ज्वाइन कर लो और एक्सटेंड कर दो सो दैट दे मीट एट O. ठीक. राइट साइड पे. ओके, ये मार्क कर दिया आपने. और दे with OA and OB as adjacent sides, complete the parallelogram OACB. Okay, now complete the parallelogram. बना लेंगे जी parallelogram अपना OAOB. Okay, now use law of parallelogram, which means now it's geometrical. अब ज्योमेट्री आ गई, उसके पैरेलल लाइन बनाओ. ओके, चूज
Place the board flat on the table. Join the 3 pairs of points marked on the paper and extend these lines to meet it. These 3 lines represent the direction of 3 forces. ठीक है, कर लिया direction. ये समझ में आया? Add weights in the hangers in such that the junction of the 3 points, मतलब point O, is in equilibrium in the lower half of the paper. ये वो एक्चुअली वो लैब असिस्टेंट करके दे देगा। तो तुम क्या करोगे? सर मैं तो पैरेलल मिरर प्लेस करके वो रिजल्टेंट निकालेगा ना फोर्सेस का। अच्छा, तो तुम वेट तो एडजस्ट करोगे ना? हाँ वेट एडजस्ट हम करेंगे, वो हैंग करके वो दे देगा। अच्छा, वो हैंग करके दे देगा. ओके, तो वो तुम कब सेटअप तक कर वेट देगा एडजस्ट करोगे? जब तक जब तक लाइक वो सेंटर ना आ जाए। कौन सा सेंटर? मतलब क्या कहते हैं, रेस्ट। यस, मतलब पॉइंट ओ, नॉट वाला जो पॉइंट है. क्या? ठीक है, वो रेस्ट पे आ गया. वो भी यूज करनी है कंपस. ओके। चूज अ सुटेबल स्केल कि लेट 0.5 न्यूटन बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ ओ एंड ओ बी. उसके ऊपर फिर जो दोनों ये लाइनें बनी हैं ऐसी, जो स्ट्रिंग से लाइनें बनी है, उस पर कंपस रख के कट इट ऑफ से 1 सेंटीमीटर. क्योंकि वेट तो तुम्हें मालूम ही है ना कितना है. हाँ जी। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेट इन टेंशन, इन लेंथ. तो मान लो तुम्हारा वेट आ गया 5 न्यूटन, तो तुम अब 5 न्यूटन्स की लाइन ड्रॉ करनी है तुम्हें. तो व्हाट यू डू इज कि भाई लेट 0.5 लेट 1 सेंटीमीटर भी इक्वल टू 0.5 न्यूटन. तो 10 सेंटीमीटर रख लेना कंपस पे, ओ पे कंपस रख के पहले 10 सेंटीमीटर पे मार्क करना. दैट विल रिप्रेजेंट 5 न्यूटन्स. फिर ओ पे कंपस रख के जो भी उस तरफ की फोर्स आई है हैंगर की, उसको भी मार्क कर लेना. मान लो 12 सेंटीमीटर आ गई, तो इधर जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, एक 10 सेंटीमीटर लंबा है, उधर 12 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब वो 6 न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो तुम्हारा रियल पैरेललोग्राम जो वेट्स को रिप्रेजेंट करता है वो बन गया इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. ठीक है. Okay, ensure that the scale is chosen in such a way that the parallelogram covers the maximum area of the sheet. Okay, बहुत छोटा स्केल नहीं ले लेना. Try and cover maximum paper जो लगा हुआ है, ये वाला, ये पेपर जो लगा रखा है बीच में सेंटर में. Join points O and C. Okay, so join points O and C. ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया OC और OA और OB. The length of OC will measure the weight of the length of OC will measure the weight of the given body. ये रहा, ये इसके अंदर C यहाँ पे, ये रहा पहले डायग्राम में. OC is the resultant. The length of OC is to be measured. Okay, फिर C dash का क्या significance है? If the see whether OC is along the straight line XO. तो मेरे ख्याल से you will have to keep adjusting the weights left and right until OC becomes straight. OC dash. नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है? ये देखो ना, ये इफ यू कीप एनी रैंडम वेट्स हियर, यू कीप वेट्स हियर, राइट, यहाँ वेट लगाते जाओ, रिजल्टेंट निकाला आपने. इफ द रिजल्टेंट कम्स लाइक दिस, then how do you know that it is cancelling X? You have to put weight in such a way that OC actually comes out to be OC dash.
मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बस। हाँ, तो वो कैसे करोगे सीधी लाइन लाने के लिए? क्योंकि ये तो जब वेट लोगे और उसके बाद लाइंस ड्रॉ कर लोगे, सपोजिंगली ये आ गई आपकी लाइन, और आपका रिजल्टेंट ये कंपास से मार्क करने पे यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्टेंट ठीक है। टूवर्ड्स ए, what will you do? It is not in line with the OX के लाइन में का है। हाँ नहीं, वो इस लाइन में तो नहीं। कोई गारंटी थोड़ी ना है कि वो आ जाएगा पहली बार में ही। ओके, मान लो if it is not in line with the XO, then what you do is let it meet BC at some point C dash। देखो ये BC बना हुआ है ना पैरेललोग्राम में, इट इज मीटिंग BC एट C dash, दिख रहा है? ये रहा BC, ये रहा BC। मान लो यू गेट दिस टेढ़ा। ये ओसी मतलब है ना? हाँ, OC टेढ़ा आ रहा है ना अभी। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, आप क्या करना, ओ को सीधा एक्सटेंड कर देना ऊपर की तरफ, OC डैश। ठीक है। ठीक है, अब आपने OC डैश भी नाप लिया, चलो जी, हम्म। क्योंकि स्ट्रेट नहीं आया। वंस यू डू दैट, व्हाट हैपेंस, देन मेजर द एंगल COC डैश, ओके। विच इज दिस एंगल, ये रहा C-OC, वो जो गैप आ गया, measure that angle also। Okay, repeat this steps 1 to 9 by suspending now different sets of weights and calculate the mean value of the unknown weight। अब दूसरे weight लगाना शुरू करो। Now suspend two different sets of weights and calculate the mean value of the unknown weight। Right? The left or right पे keep changing the weights and notice, because of now that means you're changing P and Q in the experiment. If you change P and Q in the experiment, what will happen? The force will change, resultant force बदल जाएगी ना इन दोनों के बीच में, यस सर। right? So then use that again same procedure and measure। तो इसने देखो क्या क्या नापा है। अगर आप रीडिंग्स की बात करो, so the readings are as follows, okay? So readings are angle COC dash, ये भी नापा, द हाँ जी। अननोन, द लेंथ OC, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ OC जो है ना, वो एंगल COC डैश के साथ लिंक कर देगा ये। ठीक है। तो अब अभी तक सिर्फ बदलते रहना वेट, और सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में कितनी रीडिंग्स लेने को बोला उन्होंने? एनी आइडिया हाउ मेनी टाइम्स यू आर सपोज टू डू दैट? 4-5 के आसपास। ओके, ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉट लोकेटिंग? नो, ये तो डिस्कशन है। सोर्सेज ऑफ एरर भी पढ़ लिया हमने, लेंथ भी आ गई हमारी, एंगल COC डैश, ऑब्जर्वेशन, साइंस, फ्रिक्शन एट द पुल्ली में परसिस्ट इवन आफ्टर ऑयलिंग, वो हमारा काम नहीं है। स्लॉटेड वेट may not be accurate, okay, slight inaccuracy may come while marking the position of the thread because of eyes problem। Precaution, board of grave apparatus is perpendicular to table on which it is placed, मतलब flat horizontal table के ऊपर है by its construction। Check up the plumb line that is vertical, if it is on, make sure that the tabletop is horizontal by putting back packing below appropriate। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जो ग्रेव स्टैंड है उसका जो ये है नीचे होगा कुछ, उसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए। अगर ग्रेव स्टैंड ही टेढ़ा है तो रीडिंग सही नहीं आएगी, अनदर सोर्स ऑफ एरर। ठीक। ओके, अब आपने रीडिंग ले ली सारी की सारी।
फोर्स P भी आ गई, फोर्स Q भी निकाल ली, लेंथ L भी आ गई, अननोन वेट जो है, अच्छा अननोन वेट देखो कैसे निकाला है इसने, L द लेंथ ऑफ OC मल्टीप्लाई बाय S, व्हाट इज S? ऐसे तो आई गेस स्केल। अच्छा स्केल है ये, ओके बट ये तो अज्यूम कर रहा है कि, तो एंगल COC डैश किस लिए निकलवाया? इस रिजल्ट में डज ही अज्यूम दैट, ओके सो आई थिंक ही इज सेइंग दैट स्ट्रेट अवे देन, अगर आपका सीधा नहीं आता देन मेजर OC डैश, OC डैश आप उसकी लेंथ यूज कर लो, OC डैश की। ये जो L है, L अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में L तो कहीं मार्क्ड ही नहीं है, हाँ। diagram has no L marked. The length of OC measures the weight up. So see whether is along. If not, let it meet some point. See then measure the angle C. अच्छा, COC dash also. Repeat the experiment with and calculate the mean value. Okay. So इसने मेरे ख्याल से what he has done, he has taken OC as L. Right? If we have OC dash, then where is the answer? मतलब उसका कंपोनेंट ले लिया ना उसने OC का, द कंपोनेंट ऑफ OC अलोंग द वर्टिकल। उस एंगल से कैसे निकलेगा? अगर हमें ये एंगल मालूम होगा, ये वाला C डैश OC इन अ ट्राइंगल, इफ यू नो द एंगल C डैश OC विच इज, सो कैन वी फाइंड द, नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी नहीं है ये OC का, it is not even the vertical component. So what is the use of C dash OC? If you measure the angle C dash OC, what is the use? कुछ लिखा नहीं है ना कहीं, ये तो assume कर रहा है कि every reading which you will take, you will get OC in straight line with OX. ठीक है। If we know OC and if we know two sides of a triangle and the angle between them, एक ही एंगल मालूम है, मेजर द एंगल, ये भी नहीं बताया हाउ टू मेजर द एंगल, चलो D से नाप लेंगे क्योंकि डायग्राम है हमारे पास। वी कैन मेजर एंगल C डैश COC डैश, यहाँ तो इसने एंगल COC डैश का कोई यूज ही नहीं बताया। एंड ट्रिग्नोमेट्री से तो वी कैन फाइंड मैनी थिंग्स इजीली, जैसे लेमीज होती है ना A बाई साइन है, सो हाँ आई कैन मेजर बोथ पर OC डैश लैटिस भी तो था, हम ट्रिग्नोमेट्री की है ना वो। तो ट्राइंगल ही तो है ये, हाँ वेयर डू यू यूज इट? मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरे को एक ट्राइंगल मालूम हो, मेरे नहीं नहीं सामने, मेरे सामने पेपर में ये डायग्राम बनाओ अगर, और मुझे ये एंगल मालूम हो कितना है, D से नाप लिया मैंने, सर इक्विलिब्रियम में हो तो ही हम लैमिस थ्योरम यूज करेंगे ना। हाँ हाँ तो इक्विलिब्रियम हो गया ना OC पे, चलो ठीक है तो हाँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, बट हमें पैरेललोग्राम लो बनाना पड़ेगा ना बन गया ना ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये बन गया, लेकिन हमारा ये वाला बना है मान लो, चलो सो ठीक नौ, है। तो तो ये लाइन तो हम बना लेंगे OC, भाई हमें OA तो नाप लिया ना, OA is measured, हाँ जी। OB is also measured using the compass, using the scale, 0.5 Newton is equal to 1 centimeter. मान लो this line is 12 centimeter, represents 6 Newton. This line is 10 Newton, representing 5 Newtons, represented by 10 centimeter. So if I take this on a piece of paper, I have drawn a line, then CC dash and this, ये है ना मेरा तो OC डैश, मेरा ये आ रहा है, मेरा सीधा आ ही नहीं रहा। ये एंगल मुझे मालूम है डी से मैंने थीटा नाप लिया। अब तो पेपर पे काम कर रहा हूँ ना मैं, एम वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड आई नो द लेंथ ऑफ OC,
right? That Yes, OC represents the resultant of the P and Q, yeah. and I have to find OC dash. Okay. तो मैं OC डैश को भी स्केल से नाप लेता हूँ कितने सेंटीमीटर है. ठीक है. Law, what does the law of triangle say? Any two sides, if there are, मतलब ये मेरा एक्चुअल तो ये है, पर अगर इसको मैं तोड़ लूँ दो हिस्सों में, one component is this, the other component is this. Yes. तो this is a vertical component, right? This is my vertical component. तो मैं इसकी लेंथ नाप लेता हूँ ना फिर. ठीक है. और although I will write my resultant is this, but the the component of the resultant being used to cancel the weight of this body is this one. तो ये अगर मैंने लेंथ नाप भी ली, it doesn't serve me any purpose. This length is the one which cancels the weight. ठीक है. So I will measure OC dash and then maybe write triangle law and say ये अगर है तो इसका ही बना हुआ ये, सॉरी ये वाला जो फिगर है. I don't need CC dash. मुझे तो वर्टिकली कैंसिल करना है सिर्फ, दैट्स ऑल. ठीक है. तो इसने आई थिंक व्हाट ही शुड हैव डन इज ही शुड हैव रिटन क्लियरली दैट if the experiment is not being done with the help of OC, then do the experiment with the help of OC dash. लिखा क्यों नहीं? तुम्हें किससे करवाया, OC से या OC डैश से? दोनों दोनों से बेसिकली. अच्छा, दोनों से करवाया. तो तुम कैसे फिर पता लगाओगे एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट द लाइन द रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी स्ट्रेट? क्योंकि ये तो तुम्हें उतार के हॉरिजॉन्टली रख के करना पड़ेगा. ये लाइनें मिरर स्ट्रिप रखना पड़ेगा. मान लो मिरर स्ट्रिप रखने के बाद तुमने कंपास मारी और कंपास से तुमने पैरेललोग्राम पूरा कर लिया. यहाँ पे तुमने कंपास रखी इस जगह पे, है ना? तो ये तुमने ओ पे और स्केल लिया और कंपास से यू ड्रू, मतलब लेंथ एक ये दिखा दी मार के, एक ये दिखा दी, है ना? फिर ये वाली जो लेंथ है O A2 वो B से रख के यहाँ क्रॉस करा और A2 पे ली B, तो ये क्रॉस यहाँ करा, तो तुम्हारा ये पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है. बट ये गारंटी तो नहीं है कि जो तुम बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगी. हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए. तो देन यू विल हैव टू गो बैक एंड एडजस्ट द वेट्स. ठीक है. तो बार बार यही करना पड़ेगा. इसका मतलब इट इज बेटर टू डू द एक्सपेरिमेंट विद OC डैश. You won't be able to guess ना, it will come out to be straight. हाँ. The how will you know? कभी पता नहीं चल सकता ये बिना स्केल लेके कंपास लेके पैरेललोग्राम पूरा करके. You can't find this out straight without the knowledge of unless you make it horizontal. The whole stand has to be made horizontal and you have to do this experiment maybe 10 times to get a horizontal value. भाई इसको 5 ग्राम आगे बढ़ा देते हैं, लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रही है ना? तो मेरे ख्याल से तो यू शुड डू द एक्सपेरिमेंट विद OC डैश. अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल टू गेस कि वो जो हम लगा रहे हैं वो जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आएगा. एक कोई सिमुलेशन होगी क्या इसकी? कहाँ होगी यार, NCERT ने बनाई हुई है, मिल ये सकती है वैसे. ओ लैब्स में मिल जाएगी शायद. ओके, बट आई थिंक इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जिस तरह से करा है तो बड़ा बड़ा क्या बोले इसको. वाइवा में कैसे, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सोर्सेज ऑफ एरर, प्रिंसिपल? तब मेरे फेवरेट चीज आएगी वाइवा में. क्या? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ये क्यों सिखाएंगे? नहीं, वाइवा में लॉ पैरेलल वो आएगा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज. अच्छा अच्छा अच्छा, वन ऑफ द, नहीं दोनों. अच्छा अच्छा, वाइवा में वो बोल दिया मैम ने यही पूछेगी. हाँ हाँ जी, यही पूछिए. ओके, गॉट इट.
Just give me 1 second. Okay, I'm back. Sorry. सिमुलेशन मिल गई Okay. ओ लैब्स पे. इसमें मेन पोजीशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. द पॉइंट ऑफ नो फ्रिक्शन. ओके. How will you cross check that the weight is correct? जो भी आपने निकाला, हाँ how will you cross check कि आपका आंसर सही है? हाँ, वो भी तो दिक्कत है. मान लो you found the weight to be 20 grams. How do you Okay. cross check? What you will do is ये जो ब्लॉक है ना, हुक वाला, connected to a spring balance. सर ऐसी ना ले लूं मैं रीडिंग्स कौन सी? स्प्रिंग बैलेंस यूज करके. नहीं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से निकालना है.
ठीक। तो बेसिकली हम इसे ब्लॉक की रीडिंग निकाल रहे हैं ना, जो हम टांग रखा है। अननोन वेट हाँ ब्लॉक इज x. ठीक है। तो क्रॉस चेक करने का मेथड ये रहेगा. व्हाट पता इज अ नहीं लैब। प्लम्ब लाइन? प्लम्ब लाइन क्या होती है? नंबर। व्हाट इज अ प्लम्ब लाइन इन द अच्छा, एक्सपेरिमेंट? नहीं वो नहीं पता। जो ग्रेव स्टैंड को सीधा रखती है, हॉरिजॉन्टल. ओके। ये जो नीचे के दो स्टैंड लगे हुए हैं, हाँ जी। एक प्लम्ब लाइन होगी विच हैज टू बी इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है। दे कैन आस्क यू ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में. व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस? फोर्सेस। The two forces acting at the same point. All the forces that are acting on a same point are called as concurrent forces. इस experiment में if I have to find the possibility of minimum force between P and Q, resultant of P and Q, how will I do that? What changes do I need to do in this experiment to find the resultant of P1 and P2 to be minimum? So unknown नहीं निकालना अब experiment का goal सिर्फ एक ही है. There are two forces, find the minimum resultant. How will you change the experiment? वेट से हटा के थोड़े। There, what will happen? If you remove this weight, इसको हटा दो, and you align P1 and P2 horizontally, P minus Q आ जाएगा ना उससे. So Q is 180 degree. If Q is 180 degree, what does it give you? P minus Q whole square, ओके। right? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अगर तुम ऐसा कर लोगे और एक साइड पे वेट इधर भी है और दूसरी साइड पे भी वेट है और ये जो पॉइंट O है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली है ना. सो हाँ दिस जी। एक्चुअली बिकम्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे द सिस्टम इज मूविंग मे बी इन वन डायरेक्शन, P minus Q डायरेक्शन. Then what you will do? You will add weights to the side which is moving, जो अपवर्ड जा रही है. एक ओके। पॉइंट आएगा जहाँ पे ये अपवर्ड जाना बंद हो जाएगा. वेरी डिफिकल्ट मूविंग के अंदर, हाइपोथेटिकल है बड़ा, मान लो बहुत ही स्लो जा रहा है, P माइनस Q की वजह से ऊपर जा रहा है, और द you add some weight to it, it stops. That means the point, both the sides will become in equilibrium, equal weights will come. But P minus Q meant resultant in the horizontal direction. ओके। So they can ask you theoretical questions like this. ठीक। How will the friction impact this experiment? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसी है वैसे भी। So you will not get correct readings because you have fourth force also getting introduced. The current assumption is that the experiment is being done with two forces and the third force. So instead of three forces, you will then have four forces or five forces depending on, बस friction है कहीं पे, somewhere there is a friction.
So the experiment will no longer remain an experiment of three forces, but will become an experiment of four forces, the fourth force being resultant of all the frictions present somewhere. So Okay. all the readings will be wrong. The equilibrium point will then take into account friction also. Incorrect readings will come. So ठीक therefore है. initially जो point O mark करना होता है उसमें you have to ensure कि कहीं friction की वजह से तो नहीं अटका हुआ कहीं पे. तो बार बार मूव करके छोड़ना है, बार बार मूव करके छोड़ना है. 3-4 बार छोड़ने के बाद अलग अलग ओ आ रहे हैं, उनका सेंटर लेके दैट इज अ ओ यू आर रेफरिंग टू नाउ, जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट मेजर करना है. और ब्लॉक आपने लगा दिए, साइड में वेट लगा दी, ओ आपको मालूम है. ठीक. ओके, और क्या पूछ सकते हैं आपसे? व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर. इट इज यूज टू रिमूव द पैरेलक्स एरर. पैरेलक्स. ठीक है. What is the last step you will do? Verification of the weight using the spring balance. You will ठीक. cross check whether your reading is correct or not. And if there is an error, you will report the प्रोवाइड कर error. देंगे वेट, क्या कहते हाँ हैं, बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस प्रोवाइड कर देंगे वो. हाँ हाँ करेंगे. इनफैक्ट व्हेन यू यूज द स्लॉटेड वेट्स जो हैंगर पे लग रहे हैं, वो भी यू नीड टू क्रॉस चेक उनका वेट भी, क्योंकि समटाइम्स इन लैब्स द वेट्स आर आल्सो फॉल्टी. बट आई थिंक यू विल नॉट गो टू दैट एक्सटेंट कि हर वेट को जो टांगा है पहले उसको उसका स्प्रिंग बैलेंस से जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, और जो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग आ रही है हो सकता है वो डिफरेंट हो. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है, दिस इज वन. ओके, लेट्स सी व्हिच इज द अदर वन यू हैव टू डू. सर द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना ओके, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो. यूजिंग लाइक द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ओके, पेंडुलम. पेंडुलम. Viva is only going to be on vernier caliper. वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. Okay.
पैरेललोग्राम एक्सपेरिमेंट नंबर मालूम है क्या है इसका? पैरेललोग्राम नहीं, नॉट पैरेललोग्राम, द वन विच इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है? लेट मी चेक द फ्रिक्शन measurement of time to find the coefficient of friction. inclined plane से करना है? नहीं, फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, 8th है। देखते हैं क्या आता है 8th में। एनसीईआरटी में इट इज एक्सपेरिमेंट 8। लेट अस सी व्हाट इज एक्सपेरिमेंट 8। एक्सपेरिमेंट 8 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या है? हेलिकल स्प्रिंग। आई एम यूजिंग दिस एनसीईआरटी। ठीक आर यू एबल टू सी इट? या ये देखो ना, ये एक्सपेरिमेंट दे रखी है ना। सो एक्सपेरिमेंट नंबर प्रोजेक्ट 1 to 8, एक्सपेरिमेंट 6 and 7, एक्सपेरिमेंट 8th, एक्सपेरिमेंट 11। 6 and 7 में व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट 6 and 7? 6 is plot the LT square. Okay, pendulum. ये रहा एक्सपेरिमेंट 7 है। To study the force relationship between limiting and the normal reaction and to find the coefficient of friction between surface of a moving block. तुम्हारा मूविंग ब्लॉक है? हाँ जी हाँ जी ओके, हाँ ठीक है। सो ये रहा limiting friction, you know, is the maximum value of the static friction. Kinetic friction is when you overcome that. So you're given block on block case and ensure that the surface is cleaned. And we know this rule, F is equal to mu L R. निकालना क्या है? Find to study the relationship in force of limiting. अच्छा, kinetic नहीं पढ़ना, सिर्फ limiting पढ़ना है। ओके, मैक्सिमम। ओके, अच्छा, पुली से कनेक्ट कर लिया। Okay, the limiting friction is a function of nature of surfaces in contact and is independent of area of contact, yes, so long as the normal reaction remains constant. Note that FL is equal to mu L R is equation passing तो। so यहाँ पे आपको वेट बढ़ाते जाना है बेसिकली। इस जगह पे जो वो पैन नजर आ रहा है नीचे, या तो पैन का वेट इट विल ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग, बिकम टेंशन, एंड जिस रीडिंग पे ये हिल जाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा ना। जस्ट मूव। नोट दैट passes thus in this experiment the relationship between limit and the normal reaction is to be studied. Okay, so उधर नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं, ये R इज इक्वल टू m प्लस p बाई जी, और इस तरफ निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वेट p है छोटा सा, और यहाँ पे वेट q है, m प्लस q जो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फाइंड द रेंज एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, जो भी स्प्रिंग बैलेंस यूज होगा। ओके, उसके बाद मेजर द मासेस m ऑफ द गिवन वुडन ब्लॉक, जो टेबल के ऊपर पड़ा है। देन विद हुक्स ऑन इट साइड एंड द स्केल पेन विद द हेल्प ऑफ तो ये वाला मास छोटे वाला भी नाप लेना, m विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ओके, दोनों मासेस का वेट लेना है, क्योंकि दोनों मासेस में हुक मालूम है, हुक दिया हुआ है। सो एक हुक ये रहा, और ये वाला पैन के अंदर जो उसके अंदर भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हुक लगाया जा सकता है स्प्रिंग बैलेंस का। सो मेजर द मासेस ऑफ द गिवन टू मासेस being used in the experiment, one on the block, one inside the pan.
Okay. Fix the frictionless pulley, lubricate the pulley. Yeah, better रहेगा. Now tie one end of the string of a suitable length to scale pan and tie the other end to the hook of the wooden block. कर लिया. Place the wooden block on the horizontal plane using ensure that the portion of the string is horizontal. Yeah, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये वाला जो string जा रहा है. Should be exactly parallel to the table. Okay. नोट करना है साइड में जाके कि string is parallel to the table. Ensure that the portion of the okay. Put some mass on the scale. Tap the tabletop gently with your finger. Check whether the wooden block starts moving. Keep on increasing the mass in the pan till the wooden block just starts to move. Okay? मतलब बार बार टैप करना है. थोड़ा वेट बढ़ाया, टैप करके देखा. मूविंग द और जिस जगह पे वो मूव करने लग गया, रिकॉर्ड दैट रीडिंग. Then place some known mass on the top of the wooden block and repeat the reading by increasing the mass in pan. पैन के अंदर और वेट डाल दिया. अब सेम एक्सपेरिमेंट करा. अब वुडन ब्लॉक का वेट आपने उसके ऊपर एक और मास रख दिया P. और नाउ ऑब्वियसली द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गॉन अप बिकॉज mu n has gone up. So now increase the weight in the pan and do the same thing and wait till the block of mass, the m plus p block plus weight again starts moving. Okay, so do this for 3-4 times, which means keep 3-4 p's on top of the wooden block and 3-4 q's in the pan. और इनका सबका रीडिंग ले लो. मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स तो होगी, कैलकुलेशन m प्लस पी जी, और ये सबकी रेशियो निकालते जाओ. ओके, विच इज द पैन का जो मास है दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसको जी से मल्टीप्लाई कर लो, वो आ गया आपका जो स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवल करके गया, दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन. और म्यू आर से आर की फॉर्मूले से वो निकाल लो वुडन ब्लॉक का m प्लस एम जी. इनको डिवाइड करते रहो, जो पैन में आ रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन आ रही है. क्योंकि ब्लॉक का मास भी मालूम है, ब्लॉक के जो ऊपर रखा है वो भी मालूम है. फाइंड द रेशियो, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स योर लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट. और tan थीटा निकाल लेंगे. यस. लिखा है सम पॉइंट्स मे नॉट बी ऑन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द कौन से पॉइंट्स को लें जहां पे द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स होंगी वो. Okay, precautions, surface should be horizontal, dust free. Friction of the pulley should be reduced by proper oiling. Tabletop should always be tapped gently. Sources of error. Always put mass at the center of the wooden block. अच्छा. सरफेस, ये जो मास डाल रहे हो वुडन ब्लॉक के ऊपर सेंटर में डालना है, ये वाला. ठीक है. खुद तो डाला नहीं हुआ. So this is the error in the experiment. They can ask you what is the error in the experiment. So delta F upon FL. Okay. Yes. Don't use a very large wooden block. Otherwise the friction will become so large कि wooden pan में, in the pan you will need very large masses. पैन नहीं सर, ब्लॉक. अच्छा पैन, एक मिनट. वो कहते सॉसर, हाँ छोटी सी प्लेट, हाँ, उसकी बात कर रहे हो? ये रहा ना, the maximum mass on the block. अच्छा. स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ. तो तुम्हें बहुत ज़्यादा
पैन में बहुत ज़्यादा वेट रखना पड़ेगा, मास रखना पड़ेगा हिलाने के लिए, फिर तो टाइम। ठीक, आई थिंक इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी एक्सपेरिमेंट टू डू। ठीक है। ये ज़्यादा इजी है। आई थिंक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में एंगल सी ओ सी डैश, वो मतलब प्लीज इंश्योर दैट यू डू एन एक्सपेरिमेंट इन अ वे दैट सी ओ इज इन लाइन विद द वर्टिकल रिजल्टेंट। ये तुम कैसे कर, हाउ कैन यू इंश्योर दैट? इट इज इम्पॉसिबल to adjust in law of parallelogram the two sides such that the resultant always comes out to be vertical। मतलब तुम्हें पहले से ही मालूम है कि एंगल क्या होना चाहिए रिजल्टेंट का विद द टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। ठीक है। यही बोल रहा है ना वो? और ये तुम हाँ कैसे जी। बता सकते हो विदाउट डूइंग कैलकुलेशंस कि पी और की क्यू क्यू की क्या वैल्यू रखें कि रिजल्टेंट का एंगल ये आएगा वर्टिकल इसके साथ इंक्लाइंड हो? दैट इज टू 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 मच। ये असम्पशन किसी को बोल देना कि तुम्हारा जी यू विल गेट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी। सो और ये लाइक वो बोलता है। स्ट्रेट लाइन लाना भी मुश्किल है वैसे। हाँ, कैसे हो सकता काफी है यार, मतलब। देखो काफी बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ जाएगा हमें। हाँ, वो तो मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? आपने एक ये लिया और एक ये लिया, और आप बोलते हो कि यहाँ पे जो वेट्स टांगेंगे हम जी। जो हैंगर में, उनका जो रिजल्टेंट है ये दिया हुआ है जैसे न्यूमेरिकल में दे रखा है। देर आर टू फोर्सेस, वन मेक्स एन एंगल थीटा, द अदर मेक्स एन एंगल बीटा with negative x-axis and positive x-axis respectively. It is given that the resultant of these two is vertical. तो तुमने tan अल्फा डिफाइन कर दिया ना, ये भाई इसके साथ अगर मैं इसको q लेता हूं तो ये मेरा कितना आ गया एंगल, ये वाला थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। सो विच मीन्स द रिजल्टेंट दिस इज q एंड p। तो आई माई सिचुएशन इज दिस इज माई q, this is my p, and this is my vector, right? And you're telling me my resultant is at an angle of 90 minus theta with q। ये दे रखा है मतलब क्वेश्चन में, तब तो ये पॉसिबल है कि रिजल्टेंट हैज टू बी वर्टिकल। वाई शुड बी वर्टिकल? बिकॉज ये वेट के बराबर है। सो इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट करेक्टली द रिजल्टेंट विल बी स्ट्रेट लाइन। वाई? दीज टू कैन गिव एनी रिजल्टेंट एनीवेयर, हाँ जी। and therefore if I were to find the component of this, logically what will I do? I will just draw a perpendicular here, है ना? ठीक है। परपेंडिकुलर से मुझे y कंपोनेंट दिख गया ना इसका, ये रहा, ये y कंपोनेंट नहीं हो गया इसका? हाँ जी। ये इसकी लेंथ नाप लूंगा मैं। why should I do the co डैश ऑल्सो? ये मेरा रिजल्टेंट है, मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉप करा, एक वर्टिकल ड्रॉप कर दिया, मेरे पास है ना डी, डी से बना दूंगा मैं, बोलूंगा ये लेंथ नाप रहा हूं मैं, दिस विल बैलेंस आउट माई अननोन वेट आंसर। वाई शुड आई दैट सी ओ डैश एंड ऑल दैट? यूजलेस। एक वेक्टर मालूम है उसका एक्स और वाई निकाल लिया, और द पॉइंट ओ हैज नॉट मूव्ड इन एक्स एंड वाई बाय द वे। पॉइंट ओ जो है इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस कैंसल्ड है, मतलब दैट मीन्स the this particular component of the tension and this particular the component of the tension are being assisted by this also। तो ये दोनों जो है, ये और ये टेंशन का जो x component है, इट इज बैलेंसिंग द x component ऑफ दिस साइड, ठीक है। है ना? यही तो हो रहा है, और क्या हाँ। हो रहा है? और हम इक्विलिब्रियम जो है क्योंकि हमने वेट्स ऐसे वर्टिकली टांग रखे हैं, देयरफॉर वी आर concerned about this। So O is at equilibrium x, y and y also, in y also। But क्योंकि हमें unknown weight y में निकालना है, therefore it is, we are only assuming this। I can find this also, by the way, क्योंकि मुझे weight मालूम है, I can find the tension in the string, same ही है। I know this weight also, I know the tension here also, and I know the angles also which they are making with the x-axis। So I can find the tension, मुझे मालूम है कितनी आ रही है, तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा, ये एंगल भी नाप लूंगा मैं।
experiment में. I can find t cos beta also. I can find the difference between the two and say that the resultant is in this direction. ठीक. Horizontal component भी तो आ गया इधर Yeah. इन दोनों का. हाँ जी. हाँ जी. Yes. So horizontal component has also come. It will move. If it is not straight, then there is a horizontal component also. Okay. तो अगर टेढ़ा भी आ रहा है, then it has to be just draw a perpendicular. ठीक. Draw a straight line, extend it, draw a perpendicular and say this is my y component, which is cancelling this. Otherwise, keep on doing hit and trial and move this here. इसको left side पे लाने की कोशिश करो. नहीं तो वो तो तभी पॉसिबल होगा जब आप इसे नीचे उतार के स्केल बना के पैरेललोग्राम बना के फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ढूंढोगे, तब होगा ये. So every time you will have to bring it down to do that, which I think is not a wise thing to do. The only hint I get is that since there is a horizontal component and O point, right, is in equilibrium in all the directions. So ये जो component है t cos theta or t cos beta, they're cancelling. So O remains where it is. O is not to be touched. O should not move. So you keep on adjusting the weights so that O does not move. Otherwise, O will move. Not. The point of equilibrium. ठीक. और the tension here is getting adjusted कि ये दोनों cancel हो ही रहे हैं ये. Okay? If it doesn't move. मतलब वैसे अगर तुमने ये weight नहीं लगाया, this point will go up. ठीक. Because both have a upward component and obviously right पे तो है ही. So this law of parallelogram, the way they have done this, doesn't sound very convincing way of doing it. तुम अपनी रीडिंग देखना, तुमने क्या ली थी रीडिंग क्लास में. ठीक है. एंगल निकाला था COC डैश. एनी और एंगल हमें व्हिच यू फाउंड? प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई थी. व्हाट? मेरे पास ऐसे लोड़ा वाली पड़ी है. अच्छा. वाओ, नाइस यार. Okay, so the way I'm saying your ma'am may think in a different manner. Look at this. Are you able to see the screen? Yes. Let's see. So attach the pan at all the three ends. ठीक है? पैन अटैच करना है. हाँ, पैन में रखे हैं वेट बेसिकली. ठीक है, पैन में डाल दो. Okay, mark the direction of each thread. Put some weights on each pan such that the angle is not very acute or obtuse. Mark the direction of each thread. Take the paper out. जो पेपर रखा था पीछे, हमने तो मिरर स्ट्रिप वगैरह बहुत कुछ यूज कर लिया. Measure all the angles. Consider the right side force as P. Okay, ले लिया. And Q. Transfer these lines in your manual page. Select a suitable scale and find the resultant. Calculate R and by analytical and graphical method से तो you will measure the length. Analytical method मतलब P square plus Q square is equal to R square. So if you notice this, he has also said this. Put some weights on each pan as the angle is not very acute. Angle between P and Q भी नाप रहा है ऑब्जर्वेशन टेबल में. बढ़िया, सबसे बढ़िया यही है. फोर्स P नाप ली, फोर्स Q नाप लिया, फोर्स
EQ नाप ली. EQ मतलब ये वाली बीच वाली. एंड एंगल बिटवीन P and Q नाप रहा है. Which means his focus is not the angle. He is measuring this angle. The angle between P and Q. एनालिटिकल में थीटा निकाल लिया ना इसने. द एंगल बिटवीन द टू. सबसे बढ़िया ये मेथड है. ओके. तो एनालिटिकल मेथड से ये भी आ गया. R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. दिस इज सम चरोतर यूनिवर्सिटी. होगा कुछ. चरोतर. अरे सिविल इंजीनियरिंग. अरे उसमें तो बहुत यूज होता है ये. आ गई सिविल इंजीनियरिंग आ गई. हाँ, मुझे लग रहा था दिस इज योर एक्सपेरिमेंट. दिस इज द लॉ ऑफ पॉलीगन. मल्टीपल फोर्सेस बीइंग यूज्ड. ऊपर स्ट्रिंग के अंदर देर प्रोड्यूस्ड अ टेंशन एंड पुलीज आर बीइंग यूज्ड. सो लॉ ऑफ पॉलीगन मतलब मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्टेंट. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से अननोन वेट निकालना थोड़ा सा. नॉट वेरी कन्विंस्ड विद देयर मेथड की. डजंट साउंड लाइक करेक्ट मेथड. Yes, you have to adjust the P and Q in such a way that the junction stays in equilibrium. P and Q जब लगेंगे वो नो फ्रिक्शन पॉइंट जो है I think the method is wrong. Friction में I think you can answer anything.
सर आगे सर क्या कह रहे यही सब चीजें आ रही थी प्रैक्टिकल में आपके तो। हो? हैं? यही सब चीजें आ रही थी, वो पैरेललोग्राम एक लग रहा सेकेंड, था। पैरेललोग्राम कह रहे थोड़ा। एक वीडियो देख ले कोई, ओ लैब्स वगैरह की। If you notice in the experiment, what is a way to get a straight line? Both the sides have equal weight. अच्छा, और कैसे आएगी straight line? ठीक है, ओके। But unequal weight के case में you will get COC dash. That's my question. That COC dash में why are you doing COC dash when you get a incline? If you get a resultant like this, for example, for the two vectors, पहली बात तो ये O point जो है, that means the O point has a net resultant force moving in this direction. Equilibrium है point basically. It's a point of equilibrium. Let's not call it the resultant. Okay, the resultant तो है ही नहीं क्योंकि O तो stationary है उधर. Okay, so if there is one tension here, the other tension is in this direction, and there is a third, and they are in equilibrium. But we notice that the resultant of these two is coming out to be here. ओके। Obviously, इसका एक vertical component है और एक horizontal component है. Then what happens to the horizontal component? Vertically, I can cancel because I have something vertically with me. I can cancel. But to cancel this whole thing, how will I cancel with the help of a vertical force? ये भी तो आ जाएगा एक. Are they suggesting that due to this there is a horizontal equilibrium? कैसे हो गया? For me to get perfect equilibrium, I need this. The weights to be equal at both the sides. What is the choice I have? हाँ, ऑब्वियस ही बात हो गई। मतलब या तो ये पता हो कि एंगल जो है दोनों साइड पे ये अनइक्वल है. ओके। तो माई टी कॉस अल्फा is equal to t sin cos beta, right? T1 T2. मतलब मेरे को वेट ऐसे एडजस्ट करने कि एंगल तो फिक्स्ड है, एंगल तो बदलने नहीं वाले. कि am I doing the experiment at the same angle with different weights, or am I doing the experiment with different weights and different angles? मुझे लगता है we are not doing this experiment with different angles. We are keeping the angle to be same. We are only changing the tension. If the angle is same but the tension keeps on changing, how can we get equilibrium? अगर आपने हमेशा यहीं पे रखा हुआ है, या तो O मूवेबल हो, मेरी पुली यहां पे है हमेशा. That means for every two sets
which I take of weights and do this experiment, I will have to mark O's every time. ओके ये मेरा 3 वेट लगे हुए हैं, मैंने अलग अलग लगा दिए, ये मेरा फिक्स्ड है, दिस आई एम नॉट चेंजिंग. सो मेरा मैंने यूज करा P और Q एंड O is marked here. This is a point of equilibrium. I touch it, it goes back. I remove it, it goes back. So ये मेरा O आ गया point. Okay, so this is my equilibrium point. Then I change double this. My equilibrium point shifts. Okay. Okay, then I do touching of this and that. Again it. So इसका but my angle, this theta angle, if I double this, does it change? This theta angle. नहीं. I think then this point will adjust itself in such a way, it may go down, it may go up in such a way that the horizontal components are cancelling. तो O वहीं पे नहीं रहेगा जब वेट बदलेंगे तो O will change. O is movable. ठीक है. तो O कहीं पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा in such a way that the horizontal components are also getting cancelled and only the vertical component stays. Okay. और मुझे लगता है जो ये आएंगी वैल्यूज, ये जो आएगा ना एंगल, ये वाला C डैश जो बोल रहा है, दिस इज मोर ऑफ एन एरर. क्योंकि इफ यू लीव 3 फोर्सेस हैंगिंग लाइक दिस, right, and this point is allowed to move, this is a point which can move, so and the angle cannot change. तो टेंशन तो फिक्स कर दी आपने वेट देके. If this angle goes up and down, the angle changes. If this goes down, the angle changes. And a point will come where the angles will be such that the T cos alpha is equal to T sin beta. Sorry, T cos alpha is equal to T cos beta. At that point, horizontals anyway cancel. So angle change होंगे when you put different weights. This point will go up and down. जब ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे आ जाएगा तो इसको भी चेक करना फॉर पॉइंट ऑफ नो फ्रिक्शन. So automatically you're achieving equilibrium in all the situations, which means if you take 2 weights and this is your situation with some 2 weights, 50 grams here and 40 grams here and some grams, x grams का तो ये fixed है. This point O will, you change this to 50 grams, in the next diagram, this point will move up or down and this angle, which is this angle, will change. ये angle नया आ जाएगा, may go up and the angle may change. But horizontally, it will always cancel each other. ये automatically point of equilibrium है. So O will move. O will not remain fixed. O is a movable point. As you keep on changing these 2 weights, the equilibrium point will keep on shifting. The angle will adjust and horizontally the system is in equilibrium. That means your vertical line is cancelling this. ठीक है? ठीक है. Any doubts in your mind? नहीं सर. तो इक्वल वेट से भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट और अनइक्वल से करोगे तो इफ यू डू इट इक्वल ऑल्सो इट विल गो अप एंड डाउन, द नॉट पॉइंट विल कीप ऑन मूविंग. ठीक है. ओके. क्लियर है? हाँ जी. ठीक है, बाकी पूछना कल, देखना क्या होता है. ठीक है. अपनी मैम से एक बार पूछना कि ये मैम ये जो आप क्योंकि ट्रेसिंग करनी है, रिमेंबर हमें सामने 3 धागे नजर आएंगे. We'll see 3 threads. हाँ जी. We have to just trace them, right? Yeah. We will use a mirror strip, mark the points, draw the line, extend them, joining point आ जाएगा उनका. और उसके बाद ये लेंथ को हम नाप लेंगे स्केल लेके, फिर ये भी नाप लेंगे, यहाँ पे कंपस रखेंगे, इसके बराबर यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर कंपस यहाँ पे रखेंगे, इसके बराबर लेके क्रॉस करेंगे और अपना पैरेललोग्राम पूरा कर लेंगे.